Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर के। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। रिवीजन करेंगे, काफ़ी अच्छा रिवीजन सेशन भी रहेगा पहले, फिर हम आज के करंट अफेयर्स पे शिफ्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें यूनिसेफ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है आपका 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी 2022 कब ऑब्जर्व किया जाता है 12 दिसंबर को। फिर नेक्स्ट है स्पेस एक्स, इलॉन मस्क के द्वारा ये ओन्ड कंपनी है, इनके द्वारा अभी एक प्राइवेट मिशन लॉन्च किया गया था टू द मून विद जैपनीज का लैंडर एंड यूएई का रोवर। ये टर्म याद रखेंगे अगर पूछा जाए। जापान स्पेस एक्स के द्वारा अभी एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया गया था जो कि प्राइवेट मिशन था टू द मून। इस मिशन पे जो रोवर है वो किस कंट्री का रहेगा? यूएई का रहेगा। और लैंडर किस कंट्री का रहेगा? जापान का रहेगा। ठीक, याद रखेंगे। और अगर याद हो तो स्पेसएक्स ने ही अभी 40 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी वन वेब की, और वन वेब की यहाँ की कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। और ये वन वेब ये आपकी कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रसार भारती के एडिशनल डायरेक्टर जनरल, इनको अभी इलेक्ट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन के एशिया पैसिफिक रीजन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है सुनील नाम रहेगा इनका। ठीक है, और ये क्या है? प्रसार भारती के एडिशनल डायरेक्टर जनरल। मूविंग ऑन, पीटी उषा काफ़ी फेमस एथलीट हैं ये अपने टाइम की, इनको अभी इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट बनी है वो कौन है? पीटी उषा, और काफ़ी फेमस एथलीट थी अपने टाइम पे। नेक्स्ट, भूपेंद्र पटेल टेक्स ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने ये 15th चीफ मिनिस्टर बने हैं हिमाचल प्रदेश के, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और याद रखेंगे ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। मूविंग ऑन, फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज की, कॉर्पेट। 39th एडिशन था इस कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज का, जिसमें इंडियन नेवी ने और इंडोनेशियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बाइनियल एक्सरसाइज है, मतलब साल में ये 2 बार कराई जाती है एक्सरसाइज। और रीज़न क्या है? इंडियन ओशन रीजन की सेफ्टी के लिए, इन इंडियन ओशन रीजन में प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वहाँ पे कोई इलीगल या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ना
हो सके और एक वहाँ पे सेफ्टी भी मेंटेन करने के लिए और जो चाइना का प्रेजेंस है उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर ये 39th एडिशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट पे आते हैं ह्यूमन राइट्स डे। 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद इसरो की बात करें तो इसरो के द्वारा देखो एक होता है सुपरसोनिक, एक होता है हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 मैक हो, मतलब 1 मैक होती है स्पीड ऑफ साउंड, और किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड 5 मैक से ज़्यादा मतलब 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है तो वो हाइपरसोनिक बन जाता है। तो इसरो ने अभी रिसेंटली ये हाइपरसोनिक व्हीकल के ही ट्रायल्स को कंप्लीट किया। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं जो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA। इन्होंने अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ क्यूबा एंड रोजनबर्ग यूरोपियन एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा के साथ, जो कि जर्मनी में है। ये रीज़न क्या रहेगा इस MOU का, ताकि आयुर्वेदा को आगे हम प्रमोट किया जा सके अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। और ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, MOU साइन किया गया, 5 साल के लिए MOU साइन किया गया। कहाँ पे ये MOU साइन किया गया? पंजिम गोवा में ये साइन किया गया था। और किसके दौरान? 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपोर्ट था, ये इवेंट था, इसके दौरान ये आपका MOU साइन किया गया। AIIA ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ क्यूबा एंड रोजनबर्ग यूरोपियन एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा जो कि जर्मनी में है, ठीक है, और 5 साल से ज़्यादा के लिए एग्रीमेंट साइन करा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं केरला की। केरला के बारे में याद रखो, केरला वो पहला स्टेट बन गया है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएगा बाय 2040, 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे 2040 तक और 40% रिन्यूएबल एनर्जी पे बाय 2025 तक इनको ये टारगेट अचीव करने की इन्होंने बात की। ये पहला स्टेट बन गया और केरला ये। इसी के साथ साथ इन्होंने बोला कि हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक। इसी के अलावा केरला की अगर हम जाते हैं, शैली ऐप है, इन्हीं का खुद का OTT प्लेटफॉर्म है सी स्पेस के नाम से, और इन्हीं का खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी है। तो याद रखेंगे अभी केरला के चीफ मिनिस्टर के द्वारा डिक्लेयर किया गया है सीड फार्म इन अलुवा एज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म। ये पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है जो कि एक सीड फार्म है। कहाँ पर है? अलुवा, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में, जो कि इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इन्होंने बोला कि हम ऐसे 13 और केरला में कार्बन न्यूट्रल फार्म्स को इस्टेब्लिश करने की बात करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि हम 40% ऑफ एनर्जी जनरेट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से बाय 2025 तक, और जो टारगेट रहेगा 100% अचीव करने का 2040 तक एंड कार्बन न्यूट्रल बनने का बाय 2050। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि थी मलेरिया के ऊपर। मलेरिया की बात करें तो ये जो आपकी डिजीज़ है मच्छर के काटने से होती है, ठीक। अगर मलेरिया को ही मैं बोलूँ तो अगर क्वेश्चंस की फॉर्मेट में आ जाए तो ये प्लास्मोडियम पैरासाइट की मदद से, उसकी वजह से फैलती है। और फीमेल मॉस्किटो का नाम पूछें तो एनोफिलिस मॉस्किटो। तो क्या याद रखेंगे? एनोफिलिस मॉस्किटो की मदद से या उसकी वजह से, उनके काटने से, उनकी बाइट से ये डिजीज़ फैलती है, ठीक है। बुखार हो जाता है इसमें। और इसी के साथ साथ जो डाटा रिलीज़ किया गया है WHO के द्वारा उनकी रिपोर्ट में, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 में, इन्होंने बताया कोविड-19 के टाइम पे जो डिसरप्शंस हो गई थी, कोविड-19 के टाइम पे आप देखेंगे लॉकडाउन लग गया था, तो जो टाइमली डेथ्स और जो टाइमली आप देखेंगे ना जो एक फ्लो चलता है पहले, वो नहीं था, सब कुछ रुक गया था। तो उसकी वजह से, उस डिसरप्शन की वजह से जो मलेरिया की डेथ्स थी ना, उनमें नंबर हमें बढ़ता हुआ दिखा और उसकी वजह से 63,000 मोर मलेरिया डेथ्स वर कॉज ड्यूरिंग दैट टाइम, जो कि बचाई जा सकती थी अगर हम नॉर्मल फंक्शनिंग पे कहीं ना कहीं रहते। इसी के साथ साथ आप ये समझिए, तो सिर्फ चलो मलेरिया का डाटा आ गया, लेकिन इसके अलावा और भी सारी कई ऐसी डिजीज़ रही होंगी जहाँ पे लोगों को टाइमली और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये WHO के द्वारा रिलीज किया गया मलेरिया वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022, जिसमें बताया कोविड-19 के डिसरप्शंस लेड टू मोर देन 63,000 और मोर मलेरिया डेथ्स। WHO की ही अगर मैं बात करूं तो
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं G7 नेशंस की, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। ये वो हैं जो कि ग्रुप ऑफ 7 वो हैं जो इस्टेब्लिश्ड इकोनॉमीज हैं जिनकी, इन्होंने अभी एक क्लब को इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है क्लाइमेट क्लब। द रीज़न फॉर दिस क्लाइमेट क्लब का बनाने का क्या था इन कंट्रीज़ का, कि ये क्लब मिलके अब जो आपके ग्लोबल वार्मिंग है ना उसको कॉम्बैट करने में मदद करेगा, उसके खिलाफ प्लान्स एक्शंस डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमें पता है जब हमें क्लाइमेट चेंज को अगर रिवर्स करना है और क्लाइमेट चेंज से हमें टैकल करना है तो द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन इट विल बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। 300 से 400 बिलियन डॉलर के करीब हर साल लोगों यहाँ पे हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड खर्च करने पड़ेंगे जस्ट टू टैकल द एनवायरनमेंट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये ग्रुप ऑफ 7 ने क्या इस्टेब्लिश किया? एक क्लाइमेट क्लब टू वर्क टुगेदर टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, G7 की जो प्रेसिडेंसी है अभी 2022 के लिए वो किसके पास है? 1 जनवरी 2022 से ये प्रेसिडेंसी जर्मनी के पास है। इससे पहले किसके पास थी? यूके के पास थी। और इसके बाद किसके पास होगी? जापान के पास होगी। मतलब 2023 में अगर मैं बात करूं G7 की प्रेसिडेंसी किसके पास होगी? जापान के पास होगी। ठीक है, G7 क्या कंसिस्ट करता है? जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, कनाडा, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन भी रिप्रेजेंट करता है एट ऑल द G7 मीटिंग्स में, रिप्रेजेंटेड खुद को करता है यूरोपियन यूनियन। ऑलराइट, तो ये याद रखेंगे क्या क्लब का नाम रहेगा? क्लाइमेट क्लब। ठीक, फिर इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे, इनका काम क्या रहेगा? जो पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था, पेरिस एग्रीमेंट कब साइन किया था? 2015 में साइन किया था। और 2015 से अगर मैं बात करूं 2022 तक कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। तो एक और चीज़ याद रखेंगे, 12 दिसंबर को 2022 को जो अभी 12 दिसंबर गई, इस दिन 7 साल पूरे हो गए थे, 7th एनिवर्सरी थी पेरिस एग्रीमेंट की। और पेरिस एग्रीमेंट क्या था? हमारा एम टू कीप द ग्लोबल वार्मिंग बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना, ये हमारा एम था पेरिस एग्रीमेंट का जो 2015 में साइन किया था। और इस एम को भी अचीव करने की यहाँ पे बात की गई अंडर दिस क्लाइमेट क्लब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन एम्बेसी एंड नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा भी एक MOU साइन किया गया ताकि हेल्थ, एजुकेशन और ड्रिंकिंग वाटर में वेरियस इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। तो 3 ही MOU साइन किए गए थे और इन तीनों सेक्टर में, इन तीनों फील्ड में वर्क किया जाएगा ताकि जो नेपनीज लोग हैं उनको वहाँ पे भी डेवलपमेंट देख सके और उनको भी इन सेक्टर्स में जैसे बेटर एजुकेशन मिल सके, हेल्थ केयर अच्छी हो सके ताकि लोगों का ट्रीटमेंट बेटर हो सके और जो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर है, साफ ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे लोगों को पहुँचाया जा सके। ठीक है, और अगर यहीं पे इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 101.79 मिलियन नेपालीज रुपीस के हिसाब से ये 3 MOU साइन किए गए हैं, ये प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट के बारे में। ये अभी रिसेंटली रिपोर्ट वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल WMO के द्वारा रिलीज़ की गई थी, वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ये स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 को रिलीज़ किया। और इस रिपोर्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट बात बताई गई है वो क्या है? जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जानते हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो हमारी ग्रो करती जा रही है दिन पर दिन। मतलब अभी भी हम देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर लोगों को नहीं मिलता है डेली बेसिस पे। कई बार तो ऐसा होता है कि पानी बहुत गंदा होता है, जिस पानी में से जहाँ पे एनिमल्स पानी पीते हैं वहीं से लोगों को पानी पीना पड़ता है। तो जो क्लियर और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है ना लोगों के पास, आप देख सकते हैं अर्बन सिटीज़ में है बेटर, लेकिन कहीं रूरल सिटीज़ में या कहीं पे आप देखेंगे डेजर्ट में या फिर कहीं ऐसे कंट्रीज़ में जो कि अभी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर ड्रिंकिंग वाटर है ना वो वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ तक अभी तक ये पहुँचा ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये रिपोर्ट जो थी वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की गई थी, जिसमें बताया गया कि जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, जो सोसाइटल चेंज है, उनकी मदद से हमारा जो वाटर रिसोर्सेज है अर्थ के, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है।
कैसे इफेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे हमें वर्क करना पड़ेगा ताकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे ही वैसे आपकी जो नीड है लोगों के पानी की वो भी बढ़ेगी। उसको टैकल करने के लिए क्या हमें आगे प्लान एक्शन चाहिए, एक्शन प्लान चाहिए और कैसे हम आगे उसको बढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे बात किया जाएगा। इवन अगर आपने देखा हो ला नीना, ये एक क्या था, क्लाइमेट पैटर्न था जिसने कूलिंग इफेक्ट दिया ऑन द ओशन सरफेस, जिसकी मदद से आप देखेंगे जो वो बारिश का साइकिल था ना वो थोड़ा चेंज हो गया। एंड उस पिछले साल 2021 का ही बता रहा हूँ मैं, और जिसकी मदद से आपने देखा जो काफ़ी एरियाज में जहाँ पे बारिश होनी चाहिए थी वहाँ पे बारिश नहीं हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंस की, कुछ बैंकिंग और फाइनेंस की। तो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने अभी एक गारंटीड फॉर्चून प्लान लॉन्च करने की बात की गई। ये गारंटीड फॉर्चून प्लान क्या है? ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो कि कवर ऑफर करता है एंड अ लंप सम अमाउंट आफ्टर द पॉलिसी टर्म। मतलब जब आपका टर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद एक लमसम अमाउंट देगा और आपका एक जो लाइफ इंश्योरेंस सेविंग है, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, वो भी यहाँ पे कवर किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कैनरा HSBC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो कौन रहेंगे? अनुज माथुर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में, और इसको 2008 में इस्टेब्लिश करा गया था। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सोम्पो यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन्होंने पार्टनर किया जूपर के साथ जो कि इंडिया का लार्जेस्ट इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। API प्लेटफॉर्म रहेगा ये आपका जॉपर। तो यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने जॉपर के साथ टाइप किया, और ये टाइप किस लिए किया गया, किस रीज़न की वजह से किया गया है? थ्रू दिस पार्टनरशिप जो आपका इंश्योरेंस कंपनी है यूनिवर्सल सोम्पो, ये प्रोवाइड करेगी अफोर्डेबल इंश्योरेंस कवर टू इट्स कस्टमर्स। और ये जो इंश्योरेंस होगी ना ये टेलर्ड होगी, मतलब कस्टमर अपने हिसाब से इसको डेवलप कर सकता है। कस्टमर्स के पास एक्सेस होगा टू बाय इंश्योरेंस अलॉन्ग विद एन ऑप्शन टू परचेज अ प्रोटेक्शन प्लान। ऑलराइट, अगर फिर मैं बात करूं सोम्पो पार्टनर्स की, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? शरद माथुर। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा इसका। और सिमिलरली फिर अगर मैं बात करूं जूपर की, क्या है? API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म डेवलप करने वाली ये कंपनी रहेगी, जिन्होंने किनके साथ टाइप किया? सोम्पो पार्टनर्स जूपर के साथ। ठीक है, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड। ये इंडिया की कंपनी है, इन्होंने क्रिक रिपब्लिक की क्रिक इंडस्ट्री के साथ टाइप किया। रीजन बीइंग कि वहाँ के जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको डेवलप किया जा सके। तो हम कह सकते हैं RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड इंडिया की, इन्होंने टाइप किया क्रिक इंडस्ट्री के साथ जो कि क्रिक रिपब्लिक की है, ताकि वहाँ पे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चन। मूविंग ऑन, WTA वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं, इनके द्वारा अभी 2022 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। किनको? ईगा स्वातेक को। ईगा स्वातेक या याद रखेंगे पोलैंड से पॉलिश की प्लेयर हैं, याद रखते हैं। ये वर्ल्ड की नंबर 1 वीमेन टेनिस प्लेयर हैं, और WTA ने इनको अभी WTA 2022 के प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर मैं टोटल बात करूं 2022 सीजन में इन्होंने अ टोटल ऑफ 67 मैचेस को जीता है। WTA हैज़ अनाउंस्ड द 2022 WTA प्लेयर अवार्ड विनर्स इंक्लूडिंग 5 प्लेयर्स अवार्ड, 3 प्लेयर सर्विस अवार्ड्स एंड द कोच ऑफ द ईयर अवार्ड। यहीं पे वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन की बात करूँ, चेयरमैन एंड CEO कौन रहेंगे? स्टीव सिमोन रहेंगे। प्रेसिडेंट कौन है? मिकी लॉलर है। कब फाउंड किया गया था? 1973 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? फ्लोरिडा USA में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे बसील जोसेफ की। बसील जोसेफ एक डायरेक्टर हैं, इनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया एट द एशियन एकेडमिक क्रिएटिव अवार्ड्स फॉर मीनल मुराली। और इनको कहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? सिंगापुर में इनको इस अवार्ड से सम्मानित
किया गया था। तो याद रखेंगे एशिया एकेडमिक क्रिएटिव अवार्ड्स, ये आपके एशिया पैसिफिक अवार्ड्स थे, सिंगापुर में हुए थे, जो कि 7 और 8 दिसंबर को हुए थे 2022 में। और इस अवार्ड के दौरान किनको सम्मानित किया गया बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से, वो हैं बसील जोसेफ को। काफ़ी याद इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसी के साथ साथ नेटफ्लिक्स भी एक बिग विनर रहा ऑन दिस एशियन एकेडमिक क्रिएटिव अवार्ड्स विच टुक प्लेस इन सिंगापुर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट की। ये गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट जो हैं, इन्होंने अभी मास्टर्स ऑफ द WHO अवार्ड को जीता 2022 के लिए, और इनका नाम क्या रहेगा, KR पालिनस्वामी। ये चेन्नई बेस्ड गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अभी मास्टर ऑफ द WHO अवार्ड को सम्मानित किया गया है इनको। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, याद रखेंगे। ये जो इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया, कहाँ पर सम्मानित किया गया, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ गैस्ट्रोंटोलॉजी, जो कि अभी दुबई UAE में हुई थी, वहाँ पर इनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे श्री शाहजी केवी की। इन्होंने अज्यूम किया है द चार्ज ऑफ द नाबार्ड के चेयरपर्सन का। ठीक, 7 दिसंबर से इनका जो चार्ज है वो शुरू हो जाएगा। और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये किनको सक्सीड करेंगे, सुचिंद्रा मिश्रा को ये सक्सीड करेंगे। ठीक, और याद रखेंगे श्री शाहजी केवी, he is an certified associate of the Indian Institute of Banking and Finance and a NSE certified market professional, and he has worked in Canara Bank in various capacities for almost 26 years. Moving on, next WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी किन को अपना चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किया है, नए चीफ साइंटिस्ट। कौन है वो, जेरेमी फरार। एक चीफ साइंटिस्ट की ये पोजीशन जो इनको मिली है 5 साल के लिए मिली है, याद रखेंगे। और इनको ये किनको रिप्लेस करेंगे, सौम्या स्वामीनाथन को इन्होंने रिप्लेस किया, जेरेमी फरार ने। क्या क्या याद रखेंगे, WHO के नए चीफ साइंटिस्ट कौन बने, जेरेमी फरार 5 साल के लिए बने, और ये किनको रिप्लेस करेंगे, सौम्या स्वामीनाथन को। एक चीफ साइंटिस्ट का बेसिकली रोल क्या रहता है कि जो साइंस डिवीजन रहता है WHO का, वहाँ पर बेस्ट साइंटिस्ट को लाना, जो कि इनोवेशन में वर्क कर सके, जो रिसर्च में डेवलप कर सकें, जो आपकी नई डेवलप और डिलीवर कर सकें हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज को, जहाँ पे पीपलों को, जहाँ पे लोगों को उनकी ज़रूरत है, वहाँ पर जाके वो अपनी बेस्ट एक्सपर्टीज़ भी प्रोवाइड कर सकें। तो एक सारा काम इनका मैनेजिंग का रहता है टू फॉर द, जैसे आप किसी कंपनी में कोई जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है। तो ऐसे ही समझिए जो चीफ साइंटिस्ट होता है वो बाकी साइंटिस्ट को, जो बाकी रिसर्चर्स होते हैं उनको मैनेज करते हैं। एंड डेफिनेटली ही शुड बी अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड राजीवा लक्ष्मण करंडीकर एज द पार्ट टाइम चेयरपर्सन ऑफ NSC, जो कि है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है MTAR। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया है इन स्पेस के साथ। तो पहली तो ये याद रखेंगे, MTAR ने किसके साथ टाई अप किया है, इन स्पेस इंडिया के साथ अभी एक MOU साइन किया है, ताकि SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया जा सके। अगर आपको याद हो, आज़ादी सेट, जो आज़ादी सेट सैटेलाइट थी, वो मिशन था, वो किस में लॉन्च किया गया था, वो भी आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से ही लॉन्च किया गया था, बट वो इट वाज अ फेलियर। तो याद रखेंगे जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि इनकी मदद से जो शू बॉक्स साइज़ की जो सैटेलाइट्स हम बनाएं उनको डिलीवर किया जा सकता है, और ऐसी सैटेलाइट्स हर हफ्ते हम डिलीवर कर पाएंगे इनटू द स्पेस। तो इसलिए याद रखेंगे MTAR ने अभी एक MOU साइन किया, नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो इन स्पेस रहेगा इंडिया का। 3 साल के लिए ये MOU साइन किया गया, ताकि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप किया जा सके। ठीक है, चलिए यहीं पे अगर मैं MTAR की बात करूँ तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, पर्वत श्रीनिवास रेड्डी जी। कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1970 में इस्टेब्लिश किया गया था, और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, हैदराबाद तेलंगाना में। अगर यहीं पे मैं इन स्पेस की बात करूं तो चेयरमैन कौन रहेंगे, डॉक्टर पवन गोयनका, और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, अहमदाबाद गुजरात में। मूविंग ऑन, गोदी एनर्जी। गोदी इंडिया बिगिंस द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया का पहला 5.2 एम्पियर्स आर
2170 सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स की प्रोडक्शन गोदी एनर्जी ने शुरू कर दी। और ये फैसिलिटी कहाँ पे बनाई जाएगी? हैदराबाद में फैसिलिटी, हैदराबाद तेलंगाना में ये इनके प्रोडक्शन स्टार्ट की जाएगी ऑफ द इंडिया की फर्स्ट 5.2 AH21700 सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहीं पे आप देख सकते हैं जो गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है इंडिया के पहले 5.2 एम्पियर आर 21700 सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स की, जिनकी एनर्जी डेंसिटी है ऑफ 275 वॉट्स पर किलोग्राम, जो कि बेस्ड है सिलिकॉन एनोड टेक्नोलॉजी पे, जो कि हैदराबाद फैसिलिटी तेलंगाना में यहाँ पे सेटअप स्टार्ट की जाएगी। गोदी इंडिया वो पहली इंडियन कंपनी है जिनको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन से भी सम्मानित किया गया था टू सेल होमग्रोन लिथियम आयन सेल्स। नेक्स्ट है इसरो। इसरोज हॉट टेस्ट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन कंडक्टेड सक्सेसफुली। इसरो ने अभी स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया फॉर 11 सेकेंड्स इसरो के प्रोपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स एट महेंद्रगिरी इन तमिलनाडु। और याद रखेंगे, इंडिया ये 4th कंट्री बन गई है आफ्टर रशिया, चाइना एंड यूएसए टू हैव सच टाइप ऑफ स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आ जाते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। अगर मैं बात करूं HSBC वर्ल्ड बैडमिंटन टूर की, फाइनल्स में विक्टर एक्सेल्सन ने मेंस सिंगल टाइटल को जीता। ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। और यहीं पे अगर मैं बात करूं वीमेन सिंगल टाइटल की, तो अकाने यामागुची ने जीता, जो कि जापान से बिलोंग करती हैं, ठीक है। HSBC का वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फाइनल, BWF का वर्ल्ड टूर फाइनल्स, जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वर्ल्ड टूर फाइनल्स था, कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। 7 से लेके 11 दिसंबर के बीच में हुआ था। और मेन कैटेगरी में विक्टर एक्सेल्सन एंड वीमेन कैटेगरी में अकाने यामागुची विजेता रहे। मूविंग ऑन, फिर एक ऑब्यूटरी की बात करते हैं। मराठी एक्ट्रेस एंड लवानी सिंगर एंड डांसर पद्माश्री अवॉर्डी सुलोचना छावन जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। 1993 की उम्र में इनका 1933 में इनका जन्म हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। और अगर एक और क्वेश्चन बनता है, लवानी ये कहाँ का फोक म्यूज़िक आ जाता है? तो ये पॉपुलर फोक म्यूज़िक है महाराष्ट्र स्टेट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इनको लवानी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, एयरबीएनबी। जैसे आपका ओयो होता है, आप होटल्स को बुक कर सकते हैं, ऐसे ही आपका एयरबीएनबी होता है कि आपकी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और वहाँ पर आप एज अ होटल सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि लोग वहाँ पर आए और स्टे कर सकें आपके घर के वहीं पर, ठीक। तो एयरबीएनबी ने ही अभी एक MOU साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ। एंड रीज़न क्या था? जो इंक्लूसिव टूरिज़्म है उसको बढ़ावा दिया जा सके, ताकि टूरिज़्म में पोटेंशियल, टूरिज़्म में ग्रोथ देखने को मिले। एंड हम जानते हैं गोवा इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया की, जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाना। एंड वहाँ पर सेलिब्रेशन करने के लिए या पार्टी करने के लिए डेफिनेटली लोग जाना पसंद करते हैं, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। एयरबीएनबी ने किनके साथ टाइप किया? DOT, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ, ताकि टूरिज़्म को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। टूरिज़्म बढ़ेगा तो जो स्टेट है वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक। और नए नए इवेंट्स, देखो रोज़गार लाने के लिए यहाँ पे टूरिज़्म में क्या होगा? नए नए इवेंट्स उनको ऑर्गेनाइज कराने पड़ेंगे, नई नई तकनीक सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। नए नए इवेंट्स आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल लेवल पर जो आपका टूरिज़्म है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ग्रोथ देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली जो स्टेज चाहिए होंगे, लोगों को रुकने के लिए कमरे चाहिए होंगे, होटल चाहिए होंगे, उसकी नीड कौन पूरी करेगा? एयरबीएनबी। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ गोवा की, अगर आपको याद हो तो गोवा में ही आपका क्या है? साउजॉव फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। यहीं पे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी खोला गया है। और यहीं पर आपका क्या है? नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड GST। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। AIIA ने एक एग्रीमेंट साइन किया विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा। केरला के चीफ मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया सीड फार्म इन अलुवा एज द इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म।
WHO के द्वारा वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 रिलीज की गई और बताया कोविड-19 के डिसरप्शन के दौरान 63,000 और मोर मलेरिया डेथ्स वर कॉज्ड। G7 नेशन ने इस्टेब्लिश किया इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग। इंडियन एम्बेसी नेपाल में है, इंडियन एम्बेसी एंड नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा एक MOU साइन किया गया ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि आपकी एजुकेशन हेल्थ केयर सेक्टर से एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से वहाँ पे डेवलप किए जा सकें। WMO ने अभी रिलीज़ किया ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2021 को। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया नॉन पार्टिसिपेटिंग गारंटेड फॉर्चून प्लान को। फिर आ जाता है यूनिवर्सल सोमपो ने पार्टनर किया जूपर के साथ टू रोल आउट स्पेशल इंटीग्रेटेड ऑफरिंग। RVNL ने फॉर्म किया JV विद जॉइंट वेंचर या फिर MOU कह लो विद क्रिक इंडस्ट्री टू डेवलप रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इन किर्गिस्तान रिपब्लिक WTA अवार्ड 2022 की बात करें तो ईगा स्वातिक इनको नेम किया गया एज द 2022 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम और ये पॉलिश प्लेयर है। देन एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स की बात करें तो बसील जोसेफ को बेस्ट डायरेक्टर फॉर मिनल मुराली से सम्मानित किया गया। KR पालनस्वामी ये चेन्नई बेस्ड गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट हैं और इनको मास्टर ऑफ द WTO अवार्ड से सम्मानित किया गया। देन शाजी KV ने अज्यूम किया एज द चार्ज ऑफ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। WHO ने अपॉइंट किया डॉक्टर जेरेमी फरार को एज द न्यू चीफ साइंटिस्ट। ये किनको रिप्लेस करेंगे? सौम्या स्वामीनाथन को। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजीवा लक्ष्मण करंडीकर को पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया NSC का। देन MTAR ने साइन किया एक MOU इन स्पेस के साथ फॉर डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ SSLV। गोदी इंडिया ने एक अभी प्रोडक्शन स्टार्ट किया है इंडिया के फर्स्ट 5.2 AS21700 सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स का हैदराबाद तेलंगाना में। इसरो ने हॉट टेस्ट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन को टेस्ट किया और इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया और इंडिया अब 4th कंट्री बन गया टू हैव स्क्रैमजेट इंजन। HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स की बात करें तो मेंस कैटेगरी में विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के हैं एंड अकाने यामागुची जो कि जापान की है यहाँ पे विजेता रही। फिर मराठी एक्ट्रेस एंड लवानी सिंगर पद्मश्री अवार्डी सुलोचना शावन इनका निधन हो गया। ऑस्कर विनिंग अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जूलिया रिचर्ड इनका भी निधन हो गया। और Airbnb ने अभी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ टाइप किया ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला, यूनिसेफ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? दूसरा, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज मिशन? तीसरा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन्स डे 2022 के लिए? चौथा, विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्क्लेव ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? और पांचवा आ जाता है किस सिटी ने होस्ट किया फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज को इन मीटिंग? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपके 5 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ऑल्सो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आप चाहते हैं सेशन हम फ्यूचर में कंटिन्यू रखें तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। ऑल्सो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज वीडियोस सच एज इंटरनेशनल डेज, इम्पॉर्टेंट डेज, इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, ये सारे टॉपिक्स भी हम आपके डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं। इनकी PDFs के लिए जो कि आपको इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में अवेलेबल कराई जाएगी, वो कहाँ पे आप देख सकते हैं? वो आपको कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे हमें जाके देखना पड़ेगा जो कि पेड कोर्सेज के अंडर आता है। वहीं पर आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर बेटर रिविजन। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.